دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو ہر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنی انٹری بریلی بھائیو، دیگر بہتری و سما السلام علی من تبلدا۔ سامعین حضرات، جیسے کہ میں اکثر یہ دعویٰ کرتا رہتا ہوں کہ اہل حدیث حضرات کو نہ قرآن اور نہ حدیث، نہ ان کے کوئی قوانین، قرآن اور حدیث کا نہ تو انہیں کوئی قوانین پتہ ہے، نہ کوئی اصول پتہ ہے، اور نہ ہی قرآن اور حدیث کا انہیں علم ہے۔ میں بس زیادہ کچھ نہیں کہوں گا اس تبصرے میں، بس اتنا کہوں گا کہ آپ اس آڈیو میں سنیں، اور جو ہم اکثر دعویٰ کیا کرتے ہیں اس آڈیو میں وہ ثبوت موجود ہے، اور آپ سنیں، آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ اہل حدیث حضرات کون سی علم کے بنا پر یہ دعویٰ قرآن اور حدیث کا کرتے ہیں، اور ان سے بات کرنا مطلب کہ اپنے علمی معیار کو مضروب کرنا ہے، ان سے کسی بھی مسئلے پہ بات کرنا مطلب اپنے علمی معیار کو مضروب کرنا۔ بہرحال آپ آڈیو سنیں اور خود ہی فیصلہ کریں۔ میں تمام سامعین حضرات سے کہوں گا کہ ہماری اس آڈیو کو خوب زیادہ شیئر کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال رکھیں، تاکہ جو ہے ہمیں پتہ چلے آپ چاہتے کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسری آڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے ہمارے لیے دعائے خیر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیگر بہتریوں ثم السلام علی من تبلدا۔ ہاں جی جی بولیے۔ جی، آپ کا تعارف؟ میرا نام انسان علی ہے۔ انسان علی، ہاں جناب بولیے، کیا بات ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عبداللہ بھائی کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بھائی نے یہ بولا ہے کہ میلاد پہ مناظرہ کریں گے، انہوں نے میرے کو میسج کیا ہے اور بولا اپنے نمبر بھیجیے، تو میں نے اپنے نمبر بھیجے ہیں، تو آپ بات کر رہے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سوکن خان، راج گڑھ سادی پور، ضلع چورو، راجستھان، اہل حدیث۔ یہ میں پہچان کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو، تاکہ آپ جانیں کہ میں کس سے تعلق رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو کیا میلاد شریف جو ہے میلاد منانا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ جی میرے نزدیک کچھ نہیں، میرے کو تو سوال کرنے آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دینے کا، آپ اس بات پر سہمت ہیں؟ نہیں، سوال اور جواب کی دکان نہیں ہے نا، آپ کہنے سوال اور جواب کی دکان نہیں ہے تو پھر بھائی آپ کے عبداللہ صاحب نے کیوں کہا کہ میلاد پہ بات کریں گے؟ آپ نے کہا کہ مناظرہ کرنا ہے تو دعویٰ دیجیے بھائی، میلاد آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ کے بھائی، آپ کے شاگرد عبداللہ نے کہا، میں نے نہیں کہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے ہی کہا ہے۔ ہاں انہوں نے کہا، نہیں ماننا پڑے گا آپ کو، انہوں نے کہا ہے، جبھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آپ جو ہے عید میلاد کے تعلق سے حضرت آپ اپنا دعویٰ پیش کریں، اس سے آپ کیا مانتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر بات چیت شروع ہوگی۔ میں اپنا کیا دعویٰ پیش کروں؟ آپ کی بات میں بھی کیا؟ ارے وہ تو پوری دنیا جانتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم عید میلاد مناتے ہیں۔ ہمارے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے، آپ یہ بتائیے، آپ عید میلاد النبی بناتے ہیں کیا؟ بالکل مناتے ہیں۔ اچھا، تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، سب سے پہلے سوال میرے سوال شروع ہو چکے ہیں، اب آپ سنیے، آپ کی بات کو کیا کہتے ہیں عید میلاد النبی کے تعلق سے؟ میں نے سوال میرے ہوں گے، جواب آپ کے ہوں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہوں آپ سے میرے کو سوال کرنا ہے، کیا آپ عالم و حافظ ہیں؟ ہم طالب علم ہیں، آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں عید میلاد کے تعلق سے؟ اگر آپ طالب علم ہے تو میرا اور آپ کا کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ طالب علم ہے، طالب علم رہو، عالم مت بنو۔ آپ عالم ہیں؟ نہیں، میں تو نہیں کر عالم ہوں، میں نے تو پہلے سیکھا جب، میں تو عالم نہیں ہوں۔ آپ نے کہا پہلے حدیث ہیں۔ نہیں، میں اہل حدیث ہوں، تمہیں بتانے کے لیے، جیسے تم بریلوی ہو اس لیے ہم اہل حدیث ہیں، اس پر سمجھانے کے لیے، اور الحمدللہ سب مسلمان ہیں، یہ کوئی اعتراض اور ٹوپی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ کو علم نہیں ہے کہ مطلب آپ دے دو نا، میرے کو علم نہیں ہے تو آپ دے دو، میں سوال پوچھوں ان کے جواب دے دو قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس میں برائی تھوڑا آہستہ بولے، تھوڑا آرام سے بات کریں، اتنا جلدی آرام سے بول رہا ہوں، آہستہ بول رہا ہوں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میرے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دے دیجیے، اگر آپ کہیں تو میں سوال کر لوں، نہیں کوئی بات نہیں۔
नहीं, जैसे हम ईद मिलादुल नबी मनाते हैं, आप सुनिए, बोला हमने धीरे बोला, वो छोड़िए आप। मेरी बात पूरी होने दो भैया, मेरी बात तो पूरी होने दो यार, हम क्या कह रहे हैं। इंसान बनकर मेरी बात सुनिए, मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, बड़े आवाज से बोल रहा हूँ। आप चुप रहे तो मैं बोलूँ ना, आप चुप रहे मैं बोलूँ। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ शेख साहब, मैं आपसे कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब लेना चाहता हूँ ईद मिलादुल नबी के ताल्लुक से। क्या आप मुझे जवाब दे पाएंगे? मैं आपको सवाल कर लूँ तो मतलब कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप जवाब लेना चाहते हैं? घुमाओ फिराओ नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये पूछा है ईद मिलादुल नबी के ताल्लुक से मैं आपको सवाल करूंगा, आप मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दे सकते हैं? करिए। ठीक है, बताइए कुरान की किसी भी आयत से साबित है क्या ईद मिलादुल नबी बनाना? पता है, बराए मेहरबानी कुरान की आयत का हवाला दें। अच्छा, असल में मैं ये कह रहा हूँ कि असल में तो कुरान का हवाला देना, असल में क्या होता है, आप हवाला दीजिए भी फलाने सूरत फलाने पारे में फलाना आयत में फलाना। बोलने नहीं देते हो यार, अजीब हाल है यार, तुम बड़बड़ करने लगते हम जानते हैं ना, आप कितने बोलोगे? हमें जान बड़बड़ नहीं, मेरा सवाल है कुरान की, मेरे आगे सवाल तो सवाल है तो जवाब तो लो यार, बोलने तो दोगे यार, तुम अजीब आप कुरान का हवाला पेश करोगे, मैं अपना खामोश हो जाऊंगा। अच्छा, आपने कहा कुरान हदीस से हमें हवाला दें, आपने कहा है। आपने पहले पूछा कुरान से, हदीस तो बात नहीं आई, पहले सिर्फ मैंने कुरान से पूछा। आप भाई जब एक ही बात कहें 10 बात ना कहें, ये बताइए कि आप इस्लाम में कितनी चीजें हुज्जत हैं? देखिए मैं जवाब ही नहीं दे पा रहा आपको, मैंने सवाल किया, जवाब आपको देने हैं। आप दावा करते हैं ईद मिलादुल नबी मनाने का, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल है नहीं बात ना करें, मेरा सवाल बड़े अंदाज से एकदम धीरे अल्फाज में बोल सकता हूँ मैं अगर आप सुने तो। मेरा सवाल ये है कि कुरान किस आयत से साबित है कि ईद मिलादुल नबी का हवाला बता रहे हैं, आप जरा रुकिए तो सही। हाँ बताइए। हाँ आपने कहना बता रहे हैं तो आप बताइए कुरान का आयत का हवाला पेश करें। में कितनी चीजें हुज्जत हैं? मैं नहीं जानता इसके बारे में, आप मेरे को सवाल का जवाब दीजिए। ये देखो सामईन हज़रात, ये अपने आप को अहले हदीस आप ऐसे बड़े मैं आपसे सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, आपने कहा सवाल करिए, मैंने सवाल किया, मेरी इज्जत है या हुज्जत है किसकी वो छोड़िए, मैं सिर्फ आपसे पहले सवाल ये करता हूँ। जब तुम्हें ये भी नहीं पता इस्लाम में कितनी, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, आप मौजूद हो, आप बता दीजिए। मैं सिर्फ आपसे पहला सवाल किया, वो सवाल का जवाब कारोबार क्या ठेला लगाते हैं? कानून सुनने वाले इस बेवकूफ की बात सुनिए, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल किया, कुरान की किस आयत से बात साबित है कि ईद मिलादुल नबी बनाना साबित है? हवाला पेश करें, मैं खामोश हूँ, आप जवाब कुरान से बताइए। उसूल तो समझ ले आप, उसूल तो समझ लें। अरे उसूल आप क्या समझाएंगे मेरे को? मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसके मुताबिक जवाब दें आप, फिर उसके बाद उसूल समझ लेंगे। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उसूल को छोड़िए आप एक बार। हजरत सुनिए तो सही, इस्लाम में कितनी चीजें हुज्जत है, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सबसे पहले अल्लाह की किताब और अल्लाह की किताब से आप मुझे हवाला दीजिए कि ईद मिलादुल नबी किस आयत से साबित है, बताइए। आप जवाब देंगे, आप पहले बता तो दे कितनी चीजें मैं नहीं बता सकता। आपने कहा कि आप सवाल करिए तो मैंने सवाल किया, तो अब मैं सवाल करिए, आप जवाब तो अभी भी कह रहे हैं, आप अपने सवाल पे कायम रहिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, आप बता दें कितनी चीजें। मुबासरा नहीं करना है, किसी का टाइम बर्बाद नहीं करना है, मेरा सिर्फ आपसे मेरी बात सुने, आप जब तक उसूल नहीं समझेंगे आपको कुरान समझ में नहीं आएगा। आप मुझे बताएं इस्लाम में कितनी चीजें, मैं आप बरेलवी के उसूल को मानता ही नहीं है तो मैं आपके उसूल क्यों सुनूंगा? अल्लाह अकबर, आप कह दीजिए आपको नहीं मालूम है उसूल। आपने तो मेरे को उसूल नहीं मालूम है, मैं आपका इकरार करता हूँ। अब आप मेरे को बताइए कुरान से ये बात साबित कीजिए। भैया सिलो हो जाइए, सिलो हो जाइए, ये आराम से आप जो है मेरे को ये बताएं। इंसान ये छोड़ रहे हैं यहाँ पे, मैं आप बड़े स्लो बोल रहा हूँ, हमारी कोई आपको जाति दुश्मनी नहीं है, आराम से बात करें, लहजा ना बदलें। अब आप एक मिनट खामोश रहे, मैं धीरे बोलता हूँ। आप मेरे को आप ही तो बोल रहे हो, जब से मैं कहाँ बोल रहा हूँ, इतना पूछ रहा हूँ कि इस्लाम में कितनी जो है हुज्जत है, कितनी चीजें हुज्जत है, तो आप आपकी बात नहीं सुनी। मैंने सिर्फ आपसे ये सवाल किया, सबसे पहला मेरा छोटा सा सवाल है, कुरान की किस आयत से ये बात साबित है कि ईद मिलादुल नबी बनाना साबित है? आप कुरान का हवाला पेश करें, आयत नंबर और पारा नंबर बताएं प्लीज।
अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए हम बताने के लिए तैयार हैं। अब मुझे बताओ। बताएं कुरान में आप कितनी मुझे किस्म मैं की आयत बताऊं आपको होती है कुछ भी। जिससे अमल किया जाए, और कौन सी आयत होती है जिससे मैं अकीदा न बनाया जाए? अरे मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो खुद तालिब इल्म हूँ। आपने कहा कि पूछिए, जब आप अब मैंने कुछ दोबारा सवाल किया। हजरत एक आप मिनट मेरे को खामोश हो जाए, हजरत खामोश हो जाए, 2 मिनट मेरी बात सुन ले। जब आप मुफ्त में अहले हदीस बने हो, आपको कुछ इल्म है ही नहीं, तो आप कुरान कैसे समझ मैं पाओगे? दावा तो नहीं कर रहा, मैं तो आपको ये भी नहीं पता, हजरत एक मिनट, आपको ये भी नहीं पता कि भाई इस्लाम में कितनी चीजें हुज्जत होती मैं हैं। आपकी बात का इनकार नहीं करता, मेरे को कुछ नहीं पता। आपको ये भी मैं नहीं आपसे पता कि सवाल कर कौन रहा सी हूँ, कुरान की आपके आयत सवाल से का जवाब एतकाद दे। बनाया जाता है, कौन सी नहीं है एतकाद बनाए, तो आप कुरान कैसे अरे भाई आपकी मेरी बकवास बात सुनने से क्या फायदा? मेरा सवाल बकवास की मौजूदा कर रहे है। हैं। अच्छा इंसान बताइए, आप अपनी ठेला वाला तो नहीं लगाते हैं ठेले पर कहीं? अरे हम तो पता नहीं क्या क्या ठेले लगाते हैं, हमने बरेली में हाँ, ठेले तो बस वही केला वाला ठेला वाला अहले हदीस है आप। इसीलिए आपको न कुछ कुरान के उसूल पता है, आपको ना इस्लाम में कितनी चीजें हुज्जत है वो पता है, बस ईद मिलाद नबी कहाँ के साथ एक आयत। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब आप दे सकते हैं नहीं दे सकते? लाहौल बिला कुव्वत, आप जैसे अहले हदीस जो है। अस्तगफिरुल्लाह। अरे बस सही है, अल्लाह की तौहीद बयान की माशाअल्लाह। मैं ये आपसे जो कहना चाह रहा हूँ, बता अच्छा आप मुझे कुरान के हिसाब से जवाब दे पाएंगे क्या? हजरत बुखारी शरीफ की एक हदीस सुना दीजिए। अरे आप छोड़िए, अरे पहले कुरान से बात करेंगे, बुखारी मुस्लिम तिरमिजी नसई अच्छा, चलिए, कुरान की सूरह फातिहा सुना आप दीजिए। बताओ, जो सब बात ले लेंगे, कोई बात नहीं। मैंने सिर्फ आपसे ठेला वाले साहब पहले अभी कुरान के सूरह फातिहा आप सही से पढ़ के सुना दीजिए मुझे। मेरे को नहीं आता, मैं नहीं पढ़ सकता। बात अल्लाहु अकबर। तो फिर नमाज कैसे पढ़ते हैं भाई आप छोड़िए नमाज को, आप अपने बदले जाइए सवाल को। अरे आपकी औकात है ना, आपकी औकात है ना, तुम बरेली की किसी की औकात है तो आप बताओ, मुझे काम था हुआ दूध मिलाते लोग मिलाना, बताइए। ठेले वाला है, ठेला बेचता है, इसको न सूरह फातिहा पता है न मेरे को छोड़ो, आता है या नहीं आता वो छोड़िए आप। सवाल अरे तुम सारे कुरान की आयत से हवाला नहीं पेश करते कि फला बनाना। अरे चलो सूरह फातिहा पढ़ के सुना दो। अरे भाई मैं कुछ सुनाऊं आपको, आप हैं कौन सुनने वाले? मेरे सवाल है, मेरे को तो कुछ आता नहीं आपके सामने। सवाल मेरे हैं, जवाब आप देंगे। आप जवाब फातिहा की आखिरी आयत अरे छोड़ो, सूरह फातिहा छोड़ो, कुल वला शरीफ छोड़ो, जो भी आप छोड़ना कुरान के। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ कि कुरान किस आयत से साबित है कि मिलाद नबी बनाना जायज है? हजरत देखिए, मंडी जाइए और आप केला का भाव निकालिए कि आज केला का भाव क्या है, केला का भाव क्या है। हम बात कर अपने इल्मी मियार को मजरूह नहीं करेंगे। आप सड़क छाप आपके पास ठेला लगाने वाले। अरे अगर तुमने तुम्हारी माँ का दूध पिया तो कुरान के एक बात से साबित करके दिखाओ कि ईद मिलाद नबी वो नहीं पता। अरे भाई मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं नहीं जाता। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आप मुझे कुरान से सिर्फ ये बात साबित कर दो कि ईद मिलाद नबी मनाना फला इससे साबित है, बस। अनपढ़ बताओ इंसान आदमी। अरे बताइए, हाँ सुनाओ, हाँ कुरान की आयत बताओ। सुनो बता रहा हूँ। कुरान आपको समझने की सलाहियत है ना? आप बताइए, उनका भाई है ना। तो कुछ उसूल कुरान आपको पता है कि नहीं पता? हाँ वो तो आप उसूल तो बाद में आएंगे ना। पहले मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, आप पहले के आलिम है, कुरान के तजुर्बे करना, कुरान को अच्छा पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छा कुरान पढ़ना आता होगा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, कुरान की किस आयत से साबित है कि ईद मिलादुल नबी बनाना चाहिए? सुनिए, कोई नहीं सुनना चाहता। कुरान जो आप कह रहे हैं कुरान से बताओ, मैं आपको कुरान से बता दूं, ठीक है? लेकिन जब आप बता दो, बता दो। अरे आप सच्चे हो तो बता दो और मैं आपकी बात मान लूंगा। अरे हम तो सच्चे ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सच्चे हैं। तुम्हारी औकात का पता है ना मुझे, तुम्हारी औकात कितनी है, तुम कितनी? अरे औकात तो आपकी पता चल गई हजरत की। अरे हाँ हम तो कमजोर है, ठीक है, हमने मान लिया। अब आप ये बताओ, आप पढ़ लिख कर बने, आपको कुरान। अरे भाई वो छोटी सारी बातें, मैं हूँ, मेरे को नमाज नहीं आती है, वो आप छोड़िए। सूरह फातिहा नहीं पढ़ना आता, उससे भी आप टेंशन ना लो मेरे बारे में, आप मेरे बारे में टेंशन। आप कुरान का हवाला वो भी नहीं पता है, इससे ईद मिलाद नबी मनाना चाहिए, बताइए मैंने बताइए, बताइए क्या बताएं? कुरान का कितना नंबर पा रहा है?
हाँ अरे तो हम कितना तो नंबर कहते कितना नंबर हैं आउट है बताओ। कितनी चीजें हुज्जत है बताओ आप। अब आप ये छोड़िए, मैंने जो सवाल का उसका जवाब अरे वो ये मेरे को बातें छोड़िए, समझाना वो है। छोड़िए, ये हुज्जत क्या कितनी है, सवाल किया, कुरान में सवाल किया, हदीस है, किसी इजमा है, तरह क्या की वो आप मांगने छोड़िए। अरे हाँ, उसको ये आपको छोड़ने में छोड़िए, वो नहीं है। छोड़िए, अरे इसको इंसान छोड़िए, बस तुम अरे जो कह रहे तुम्हारी हो हम औकात वही कितनी, बताएं, तुम हम एक जो सवाल कहते का हैं बताओ। अरे तुम बस एक एक सवाल का सवाल जवाब नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात जी कितनी है सवाल है पता यार। चलेगा इस सवाल में। अच्छा छोड़ो, जाओ सारी बात कहीं छोड़ो, और भीख आप सारी मांगो बात भैया, देखो, थोड़ा चाप पहले आप हदीस हम बात छोड़ो, आगे पीछे की सारी छोड़ो। आपको आप मेरे को ये बात जवाब करना दीजिए, मतलब कि अपने सर को कुरान दीवार की पे किस कुछ आयत करने से के साबित बराबर है है। ईद मिलाद नबी बनाना? अरे हम कहे तो रहे भाई, आप बता अरे दो क्या, इस्लाम में कितनी अरे चीजें अरे क्या, हुज्जत है। अरे छोड़िए, मैं अनपढ़ हूँ, मैं आपके सामने पढ़ा, मेरे को अरे कुछ जब नहीं आता, अनपढ़ है ठीक है, तब इसलिए मैं अनपढ़ उससे है तो सवाल फिर करता हूँ। आप मेरे को आप सिर्फ ये ऐसे हदीस बताइए, कैसे बन गए कुरान अनपढ़ है? से कहाँ साबित है ईद मिलाद नबी बनाना? मेरी हदीस औकात का है तो है। जवाब दे दो। अच्छा चलिए, आप अरबी मतन में नहीं तो आप उर्दू अरे में मैं एक अरे हदीस नहीं सुनाने नहीं, मैं सनद कुछ के नहीं साथ। जानता, अरबी में नहीं जानता, उर्दू में नहीं जानता, हिंदी में नहीं जानता, मतन नहीं जानता, लीब नहीं जानता, जबर नहीं जानता, जेवर नहीं जानता, पेश नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। मेरे को जब आप कुछ ही जवाब नहीं दीजिए, जानते हो कुरान तब कुरान की किस कैसे बात समझोगे? से ये बैल, बात मैं तो साबित है ईद मिलाद देखता हूँ नबी कि आप बनाना? बैल मुझे मार नहीं हो, तुम्हारे क्वेश्चन नहीं चलेंगे। अरे हम फिल्मों के अंदर 20 साल रहे, तुम्हारी औकात क्या है? बात कैसे तुम समझोगे? तो अच्छा ठीक है, जाओ आप कहीं करो, पहले मैं आपसे मदरसे फिर में एक पढ़ सवाल लो, करता थोड़ा हूँ। बहुत अरे भाई हेलो, मैं आपसे हजरत, नहीं अरे कुछ जाओ कहीं, भोंको, अरे आप मेरी बात भोंको, तो यार, कहीं मदरसे में पढ़ लो और उसके बाद थोड़ा बहुत अली बेस बेस जबर जेर पेश नजदीक ये सब सीख लो, उसके बाद जो है आ जाना, ठीक है? मैं बता दूंगा, नहीं तो यही होगा कि भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी पकड़ाई, भैंस के समान है। और मैं जो है आपके सामने इल्मी बातें अगर रखूंगा तो आप बकर बकर करोगे, आपके पल्ले नहीं आएगा, ठीक है? हाँ, तो भैंस अहले हदीस है, आप अहले हदीस हैं, आप केला वाले जाओ मंडी में भाव पता करो, और नहीं तो जाओ कहीं रुजू करो, इनसे जो है इल्म हासिल करो, ठीक है? ठीक है, चलिए। और भोंको, हाँ भोंको, तुम्हारी कोई